Hello friends, this is Kirti Devre and welcome to my channel. Here I am today with the latest video on database management system. So friends, as we seen the basic introductory part and the properties of DBMS in our previous video, in the today's video we are going to discuss the architecture of DBMS, database architecture. So the very first is, what are the types of database architectures? That is one-tier architecture, two-tier architecture, three-tier architecture and the entire architecture. So friends, before going to learn or discuss these architectures, I think we have to clear about the very basic concept of this topic, which is what is database architecture. So moving toward the very basic definition of this topic, what is the database architecture? So the definition is, database architecture focuses on the design, development, implementation and maintenance of a computer program that stores and organizes information for various agencies, institutions and businesses. So friends, what simply database architectures does, it focuses on the design, development and implementation, maintenance of a computer program. जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है वेरियस एजेंसीज के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, बिजनेसेस के लिए, तो उसके जो भी 4 प्रॉपर्टीज होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के, विच इज़ डिज़ाइन, डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट एंड मेंटेनेंस ऑफ अ प्रोग्राम, उस पर डेटाबेस आर्किटेक्चर फोकस करता है, वर्क करता है. A database architect develops and implements software to meet the need of a user. So database architecture एक ऐसा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करता है, डेवलप करता है जो यूजर्स के सभी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. फॉर एग्जाम्पल, वन बिजनेस और वन कंपनी wants a software which stores the personal information and some professional details of a user. So what database architect do? It does develop that kind of software which store all the personal and relatable professional information of a user and store it properly into the database. So friends, the design of a database, DBMS, is totally depend on its architectures. So database architecture प्रोग्राम डेवलप करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, मेंटेन करने का काम करता है और यूज़र्स के सभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको वो डिज़ाइन करता है ताकि फिर यूज़र्स के सभी रिक्वायरमेंट हम सेटिस्फाई कर सके. So friends, starting with the very first, which is one-tier architecture. So here I added a diagram. Here I mentioned that client computer and file server. So friends, what is one-tier architecture? So the one-tier architecture involves putting all of the required components for the software applications or technology on a single server or platform. As I added here in this rectangle, I added the 3 computer, which is a client computer and a file server in a one single program, one single software. सो वन टायर आर्किटेक्चर जो भी रिक्वायरमेंट कंपोनेंट्स होते हैं, रिक्वायर कंपोनेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होता है और टेक्नोलॉजी के लिए, वो सभी एक सिंगल सर्वर पे, सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करके देता है. बेसिकली अ वन टायर आर्किटेक्चर कीप्स ऑल ऑफ द एलिमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग इट इंटरफेस, मिडलवेयर एंड बैकएंड डेटा इन अ वन प्लेस. तो जो वन टायर आर्किटेक्चर होता है वो यूज़र इंटरफेस, उसका मिडलवेयर जो मिडल टर्म होता है वो, और बैकएंड का डेटा जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं, वो सभी एक ही प्लेस पे हमें वहाँ पे अवेलेबल मिलता है. सो डेवलपर्स सी दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम एज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट डायरेक्टिव वेज. सो ये जो वन टायर एप्लीकेशन है वो बहुत ही सिंपल है और सबसे आसान है, सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है वन टायर आर्किटेक्चर का, जहाँ पे हमें यूज़र का डेटा, मिडलवेयर एंड बैकएंड डेटा, जहाँ पे हम सभी अपना डेटा स्टोर करते हैं, वो सभी एक ही सर्वर पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे हमको वहाँ पे मिल जाता है. So friend, the second is two-tier architecture. Here also I added the diagram where I put a line in between the client tier and database server. So these 2 tier I added here. One is client tier where you can only see the client computer or client PC, tablet, whatever. And in the database server, we store the data. So the 2 tier architecture is based on client server architecture. Here I added the 2 tiers, which is first is a client tier and the second is a database server.
The two-tier architecture is like a client-server applications. The direct communication take place between client and server. This is not intermediate between client and server. So यहाँ पे जो होता है हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में. यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं है क्लाइंट और सर्वर के बीच में. तो इसके यूज़ से हम यहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं. So the third one is three-tier architecture. Here I added the three separate diagrams. One is for client, second is for server, and third is for database. So these three tiers, these three layers of it. One is presentation layer where we can consider our personal computers, our PC, our laptops, our tablets, our mobiles, whatever. Second is application server, which is a server where we store the through it we store the data, and the third one is database server. सो फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन लेयर में हमारा पीसी या फिर टैबलेट वो सब कुछ आ जाता है. एप्लीकेशन लेयर जो सर्वर का होता है, एंड द लास्ट वन इज डेटाबेस सर्वर. So this DBMS architecture, the three-tier architecture, contain an application layer between the user and the DBMS. यहाँ पे यूज़र और DBMS के बीच में एप्लीकेशन लेयर मौजूद है, which is responsible for communicating the user's request to the DBMS system and send the responses from the DBMS to the user system. अभी ये एप्लीकेशन लेयर जो बीच में है वो क्या काम करता है, तो वो कम्युनिकेट करने का काम करता है यूज़र से लेके DBMS तक, राइट. सो वो क्या करेगा, यूज़र्स की रिक्वेस्ट जो DBMS को सेंड करेगा और फिर DBMS की रिस्पॉन्सेस यूज़र्स को सेंड करने का काम करेगा. द एप्लीकेशन लेयर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बिजनेस लॉजिक लेयर ऑल्सो प्रोसेसेस फंक्शनल लॉजिक, कंस्ट्रेंट एंड रूल्स बिफोर पासिंग द डेटा टू द यूज़र और डाउन टू द DBMS. फिर ये जो भी डेटा या फिर जो भी मैसेज होगा यूज़र्स का जो DBMS को सेंड करेगा, या फिर जो भी रिस्पॉन्स होगा DBMS थ्रू यूज़र्स को सेंड करने के लिए, वो प्रोसेस करता है उसको फंक्शनली लॉजिक से, कॉन्स्टेंट से और जो भी रूल है उसके हिसाब से, एंड देन इट पास द डेटा. So friends, there are some goals of this three-tier architecture, which is to separate the user application and physical database. The very first is because in the very first, which is a one-tier architecture, we see everything available on a one place at a one server. हमें एक ही जगह पे सब कुछ मिल जा रहा था, वहीं पे हमारा डेटा भी हमें था, बैकएंड का भी था, यूज़र इंटरफेस भी वहीं पे था. इन दिस सेकेंड टू-टायर आर्किटेक्चर, वहाँ पे हमें क्लाइंट और डेटाबेस सेपरेट थे, तो उनके बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं था, वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते थे. लेकिन इन द लेटेस्ट थ्री-टायर आर्किटेक्चर में वहाँ पे एप्लीकेशन लेयर ऐड कर दिया गया, क्योंकि वो फिर मैसेज सेंडिंग का या फिर रिस्पॉन्सेस का जो भी काम हो वो अच्छे से प्रोसेस कर सके, उसको कॉन्स्टेंट फंक्शनल लॉजिक्स लगा के, रूल्स लगा के फिर वो डेटा अपना पास कर सके. So there are goals behind of it, the three-tier architecture, which is to separate the user application and physical database. सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट गोल है कि यूज़र का एप्लीकेशन और जो भी फिजिकल डेटाबेस है उनको सेपरेट करने का बाय यूजिंग द एप्लीकेशन लेयर. सेकेंड वन इज प्रपोज टू सपोर्ट DBMS कैरेक्टरिस्टिक्स. जो भी डेटाबेस के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको सपोर्ट करने के लिए ये आर्किटेक्चर बनाया गया है. देन डेटा इंडिपेंडेंट को प्रोग्राम करने के लिए, जो भी डेटा इंडिपेंडेंस है, क्योंकि इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड आर्किटेक्चर हमें एक ही जगह पे मिल जा रहा था इन द फर्स्ट आर्किटेक्चर. इन द सेकेंड दे कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली, बट इन द थर्ड आर्किटेक्चर इट इज़ सेपरेट. डेटाबेस जो है वो सेपरेट है इंडिपेंडेंट से. एंड द लास्ट गोल इज सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज़ ऑफ डेटा. जो भी डेटा के जो भी मल्टीपल व्यूज़ होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए ये जो आर्किटेक्चर है वो मेनली डिज़ाइन किया गया है. सो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट इज़ समरी. हमने आज के वीडियो में क्या क्या देखा उसको एक शॉर्ट में हम उसको रिवाइज कर लेंगे, उसको रिकॉल कर लेंगे. सो द वेरी फर्स्ट इज वी सीन द डेटाबेस आर्किटेक्चर डेफिनेशन. सो simply database architecture helps in design, development, maintenance and implementation of a database. सो DBMS आर्किटेक्चर क्या करता है, तो वो हेल्प करता है प्रोग्राम को या फिर डेटाबेस को डिज़ाइन करने में, डेवलप करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में एंड मेंटेनेंस करने में.
तो फिर उसके बाद हमने देखा वन टायर आर्किटेक्चर, विच इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ अ डेटाबेस आर्किटेक्चर is the one tier architecture where the client server and database all resides on the same machine. सबसे आसान, सबसे सिंपलेस्ट डेवलपर जिसे समझते हैं वो है वन टायर आर्किटेक्चर, जहाँ पे हमें क्लाइंट, सर्वर और डेटाबेस सब कुछ एक ही जगह पे सेम मशीन पे हमें अवेलेबल मिलता है. The second is two-tier architecture. A two-tier architecture is a database architecture where presentation layer runs on the client and data is stored on a server. जहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर का इम्पोर्टेंट होता है और क्लाइंट और सर्वर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं. This is what about the two-tier architecture. And the last one is three-tier architecture. It consists of a presentation layer, the application layer and the database layer. The very short important note about it, it consists three layers. First is presentation layer, which includes your PC, tablet, mobile, etc. Second one is application layer, which is actually a server layer. And the third one is a database. सो फ्रेंड्स, अगर आपने आज की वीडियो देखी और उसके बाद आपको सभी पॉइंट्स एकदम आसान तरीके से याद रखने हों तो आप ये समरी ज़रूर एक बार रीड कीजिएगा. इसके थ्रू यू हैव टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी आर्किटेक्चर्स ऑफ DBMS. और यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स बहुत शॉर्ट में कवर कर लिए हैं ताकि आप इसको फिर लिखते समय आप एक्सपांड कर सकते हो. इससे रिलेटेबल क्वेश्चंस मोस्टली थ्री टायर आर्किटेक्चर पे पूछा जाता है कि थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या है, ड्रॉ इट डायग्राम एंड उसके कुछ गोल्स और डेफिनेशन, एडवांटेजेस, उसके हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं. फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक टू द वीडियो, शेयर इट विथ योर अदर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल and please press the bell icon for never miss an update. And if you want to follow us on Instagram, then I mentioned the link below in the description box. You can directly go through it. And thanks for watching.